Hello students, in continuation of previous lecture, today we will solve exercise 6.3 question number 7 onwards. All the concepts regarding this topic we have already discussed in previous lectures. So let's start question number 7. If ABCD belongs to R means all are real numbers, show that the roots of this equation cannot be real unless they are equal. We have to find the condition for real roots of this equation. Roots of equation will be real if delta is greater than equal to 0, या तो 0 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो. तो चलिए हम इसके लिए डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फॉर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. The value of delta is b square minus 4ac. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is constant term. For this equation, delta is equal to b square. b means the coefficient of x, that is 2ab plus cd minus 4a. a is coefficient of x square into c. c is constant term, that is b square plus d square. 2 स्क्वायर 4 हम दोनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. मल्टीप्लाई कीजिए. -1 अगर हम कॉमन ले लें देन b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd. Look at this bracket. This is whole square of BC minus AD. Means this is whole square of this. Now, for real roots, delta should be greater than or equal to 0. Means this will be greater than equal to 0. Now ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है और स्क्वायर वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगी और ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती. आपको अंदर से पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव इट विल बी नेगेटिव. मीन्स ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल नहीं है. देन कंडीशन इज सिंगल condition for real roots is it is equal to 0. In this case delta cannot be greater than 0, therefore delta must be equal to 0. और अगर delta 0 है it means roots are equal. और यही हमें प्रूव करना था. रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रियल अनलेस दे आर इक्वल. एक ही कंडीशन में इस इक्वेशन के रूट्स रियल हो सकते हैं अगर वो इक्वल हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ABC belongs to Q means रेशनल नंबर्स एंड A plus B plus C is equal to 0. ये कंडीशन भी हमें गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेशनल. तो देखिए रेशनल रूट्स के लिए कंडीशन को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फॉर रेशनल रूट्स delta should be greater than equal to 0. Coefficient ABC must be rational numbers and delta should be perfect square. ये 3 कंडीशन हैं जो हमें रेशनल रूट्स के लिए प्रूव करनी होती हैं. अब इसमें से देखिए एक कंडीशन तो हमें गिवन है ABC आर रेशनल नंबर्स. वी हैव टू शो दीज 2 कंडीशंस. हमें गिवन है and a plus b plus c is equal to 0 and we have to consider the standard quadratic equation. For this delta will be equal to b square minus 4ac. Now from this equation b के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं माइनस a plus c. स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा.
नाउ इट इज a माइनस सी होल स्क्वायर, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर है एंड पॉजिटिव भी है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और बाहर भी पॉजिटिव साइन है, तो डेल्टा पॉजिटिव भी है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है इफ a इज इक्वल टू c, means all the conditions are satisfied. Delta is positive, ABC belongs to Q and delta is also a perfect square, therefore roots are rational. अब देखिए इस रूट्स को रेशनल प्रूव करने के लिए हमने ये वाली कंडीशन यूज की थी, b के प्लेस पर a प्लस सी पुट किया था, मीन्स roots of this equation will be rational if ABC are rational and a plus b plus c is equal to 0. Now second we have to prove is the converse of above is true. Converse हमें true prove कर check करना है whether converse is true or not. Converse means if the roots of this equation are rational then a plus b plus c 0, means अगर किसी भी quadratic equation के roots rational हैं तो sum of coefficient 0 होगा. अब देखिए किसी भी रिजल्ट को अगर हमें ट्रू प्रूव करना होता है तो हमें उसे फॉर एवरी वैल्यू ट्रू प्रूव करना होता है, एक जनरलाइज वे में कंसीडर करना होता है. बट अगर हमें किसी भी इक्वेशन को, किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो जस्ट वन एग्जाम्पल ही बहुत होता है उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए. तो आप इस क्वेश्चन के कन्वर्स के लिए किसी भी एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हैं. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लीजिए, कोफिशिएंट्स आर रेशनल, a की वैल्यू 1 है, b की -5 है और c की 6 है. अब देखिए इसके रूट्स अगर हम फाइंड आउट करें, 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 5 हो, 3 and 2. फर्स्ट रूट इज 3 and सेकेंड इज 2. रूट्स आर रेशनल. ABC आर रेशनल, बट क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है? लेट्स चेक. a के प्लेस पर है 1, b के प्लेस पर -5 और c के प्लेस पर 6 है. इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इफ द रूट्स आर रेशनल देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0. तो आप यही इसको मेंशन कर सकते हैं. Question number 9th, roots of this equation has real and distinct for all real values of p. डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac लुक एट दिस वैल्यू, p स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और आप उसमें 4 ऐड करेंगे देन इट विल रिमेन पॉजिटिव. इक्वल टू 0 भी नहीं होगा बिकॉज p स्क्वायर -4 के इक्वल नहीं हो सकता. और अगर डेल्टा पॉजिटिव है इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. Next question, roots of this equation are real for all non-zero values of m, similar to question number 9. इसके रूट्स को हमें रियल प्रूव करना है. इट मीन्स हमें देखना होगा कि डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. वी हैव टू प्रूव सिंपली डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव. So find discriminant. b square minus 4ac, b is the coefficient of x, that is -2m plus 1 upon m whole square minus 4a, a is 1 and c is 3. 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर भी हमें 4 मिलेगा और ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव ऑन स्क्वायरिंग. m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं. देखिए डेल्टा को हमें पॉजिटिव प्रूव करना है, मीन्स डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए. अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 1 ही प्लस कर रहे हैं. नाउ दीज 3 टर्म्स आर द होल स्क्वायर ऑफ m minus 1 upon m.
नाउ डेल्टा इज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा और बाहर भी पॉजिटिव है. इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0 एंड सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 therefore roots are real and distinct. ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो m माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, बट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमें गिवन है, देन शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स इमेजिनरी है. इस इमेजिनरी प्रूव करना है, यानी फॉर सेकेंड इक्वेशन डेल्टा शुड बी नेगेटिव. अब देखिए हमें गिवन है roots of equation 1 are real and distinct. It means for this equation delta must be positive and delta is equal to b square minus 4ac. b के प्लेस पर है 2c, a के प्लेस पर है a और c के प्लेस पर है b. इट इज़ एन इनइक्वालिटी और इसको हम इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर रहे हैं. पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हम कर सकते हैं. ये एक रिजल्ट हमें मिला है गिवन कंडीशन से. नाउ वी आर कंसिडरिंग द सेकेंड इक्वेशन and we have to prove roots of this equation are imaginary. It means for this equation we have to prove delta is negative. इस कंडीशन का हम यूज करेंगे. चलिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए के प्लेस पर है 1 और c कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. 4 कॉमन ले रहे हैं. फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी ड्यू टू दिस स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं. टू भी कॉमन ले लीजिए. ए बी माइनस सी स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस रिजल्ट. फ्रॉम 2 सी स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव. इसको भी आप देखिए -1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी सी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा. अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है अंदर वाला ब्रैकेट तो इस नेगेटिव साइन की वजह से आपको डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. देयरफॉर डेल्टा विल बी नेगेटिव और जैसे ही डेल्टा नेगेटिव होगा इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी. क्वेश्चन नंबर 12th, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल शो दैट दिस रिजल्ट. इक्वल रूट्स के लिए डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0. एंड डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. चलिए पुट करते हैं एबीसी की वैल्यू. b इज इन दिस इक्वेशन b इंटू सी माइनस a is a into b minus c and c is c into a minus b. This is equal to 0. c माइनस a का होल स्क्वायर हमने ओपन किया है. b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर सी स्क्वायर. Now this term ab square c and ab square c, this will become 2ab square c minus 4a square bc plus minus 4ab c square is equal to 0. Now look at this carefully. This is bc square,
दिस इज ए बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ac स्क्वायर। अब अगर देखिए इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे सेपरेटली, हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से अगर ओपन करेंगे, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस साइन अकॉर्डिंगली पुट हो जाएगा। अगर माइनस बी है यहाँ पर तो बी जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ माइनस साइन हो जाएगा। तो देखिए माइनस को जस्ट हमें एडजस्ट करना है। फर्स्ट है 2ab स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी मीन्स फर्स्ट टू टर्म की मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव साइन ऑपरेट कर दें, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर हमें मिलेगा और बी सी सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन में ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन ऑपरेट कर दें तो जब हम फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें नेगेटिव साइन मिलेगा ए बी सी स्क्वायर। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज द होल स्क्वायर ऑफ दिस। इट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स BC plus AB minus 2AC is equal to 0, means BC plus AB is equal to 2AC. B is common. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको एडजस्ट करेंगे। 2AC is equal to B into C plus A. We can write 2AC upon B is equal to C plus A, और AC को आप ले लीजिए राइट साइड में, 2 upon B is equal to C plus A upon AC। और अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए सेपरेटली। 2 upon B is equal to 1 upon A plus 1 upon C, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13th, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? व्हेन द रूट्स आर इक्वल। सपोज इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर, बिकॉज इसके रूट्स अगर हम फाइंड करेंगे तो बोथ रूट्स आर इक्वल, -2 मिलेंगे। मीन्स जब इक्वल रूट्स होते हैं तो गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, गिवन है क्वेश्चन में कि रूट्स आर इक्वल। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, और डेल्टा फाइंड आउट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और k प्लस 2 का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स की। ड्यू टू दिस माइनस साइन ऑल साइंस विल बी रिवर्स्ड। फोर राइट हैंड साइड में, देन इक्वेशन विल बिकम 9k स्क्वायर, दिस इज 5k माइनस 32 मीन्स 27k is equal to 0. 9k is common. Now if 9k is equal to 0 then k is equal to 0, and if k minus 3 is equal to 0 then k is equal to 3. Means for equal roots for perfect square k is equal to 0 and 3. Question number 14th, last question of this exercise. If the roots of this equation are real and distinct, then find all possible values of m. For real and distinct roots, delta must be positive. डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से।
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें अगर हम इसे, देन इट विल राइट इन दिस फॉर -1 कॉमन ले रहे हैं और अब आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए। 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 6 हो, 8 and 2। इस माइनस साइन को आप इनइक्वालिटी के साइन में भी मर्ज कर सकते हैं और इस ब्रैकेट में भी मर्ज कर सकते हैं। आप दोनों ही केसेस में आंसर सेम मिलेगा आपको। आप अगर इस माइनस साइन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और अगर इस ब्रैकेट में आप इसको एडजस्ट करते हैं देन इट विल बिकम 8 - m। नाउ लुक एट दिस, हमें ये पॉजिटिव चाहिए। टू एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगी? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो केस फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। मीन्स 8 - m भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड, बीच में एंड वर्ड है, नेसेसरी है दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। m लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन पर अगर इसे हम रफली देखें, सपोज इट इज़ -2 एंड इट इज़ 8, m -2 से ग्रेटर है, मीन्स इस तरफ हम चलेंगे, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 8 से लेस है, मीन्स ये बीच वाले सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और दिस रिजल्ट इज m लाइज बिटवीन -2 एंड 8। नाउ कंसीडर सेकेंड केस when both are negative, 8 - m and m + 2 are negative। ये भी नेगेटिव होना चाहिए एंड सेकेंड वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव होना चाहिए। -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। नाउ इससे देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है। दिस इज -2 एंड दिस इज 8। एंड वर्ड से ये दोनों कंडीशंस ऐड है, मीन्स जो एक ही टाइम पर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही नंबर्स हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे। m मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 का मतलब है इस रीजन वाले नंबर्स, एंड m लेस देन -2 और लेस देन -2 वाले ये नंबर्स हैं। मीन्स साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली m की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इन दिस केस। मीन्स आंसर इज दिस। For real and distinct roots, m lies between -2 and 8। और इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।